السلام علیکم ناظرین، 4 خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ ناظرین، ماہ جمادی الاول کا چاند نظر نہیں آیا ہے۔ اتوار کو 30 ربیع الثانی ہوگی، پیر یعنی 4 نومبر کو یکم جمادی الاول ہوگی۔ ہفتے کو ہوئے رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں یہ اعلان کیا گیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں سرخیوں کی جانب۔ وائس چانسلر اچھا کام کرنے کے لیے آزاد، میرٹ کی بنیاد پر تقرر کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی میں جامع اصلاحات لانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ سے نئے وائس چانسلرز کی ملاقات۔ موسیٰ ندی پروجیکٹ پر بی آر ایس کا موقف گھڑی میں تولا، گھڑی میں ماسا کے مترادف، بیماری کو پیدا کرنے والی بی آر ایس پارٹی۔ ہمارے مذہب میں آخر کیوں نریندر مودی حکومت میں داخلت کر رہی ہے؟ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی پریس کانفرنس۔ پانچ نومبر کو راہل گاندھی اور ملکارجن کھڑگے کا دورہ، ذات پات کی مردم شماری کے اجلاس میں شرکت، تمام پارٹیوں کے ساتھ کل جماعتی اجلاس۔ مہیش کمار گور کی پریس کانفرنس۔ اور سنتوش نگر میں مندر میں لگی آگ، علاقے میں سنسنی۔ چرلاپلی میں کار میں آگ لگ جانے سے کم سن لڑکیاں جھلس گئیں۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th، 6th، 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر، ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے ماون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، ماون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، ماون ہائٹس ملے پلی، ماون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، ماون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، ماون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، ماون پرل اور ماون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ماون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، ماون آشیانہ ملے پلی، ماون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ ڈیسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر، اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ وائس چانسلرز اچھا کام کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ تمام یونیورسٹیوں کے نئے وائس چانسلرز، کونسل آف ہائر ایجوکیشن کے چیئرمین پروفیسر بالا کرشن ریڈی اور وزیر اعلیٰ کے مشیر ویم نریندر ریڈی نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے وائس چانسلرز کو رہنمائانہ ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے کام کیا جائے۔ پچھلے کچھ عرصے سے یونیورسٹی پر اعتماد ختم ہو رہا ہے، یونیورسٹیوں کا احترام بڑھانا چاہیے۔
यूनिवर्सिटियों का निज़ाम दरहम बरहम है जिसमें सुधार ज़रूरी है। इसका मुताला किया जाए। यूनिवर्सिटीज़ की मौजूदा सूरत हाल का जामे मुताला शुरू किया जाए और अमली इक़दामात किए जाएँ। अगर ज़रूरी हो तो मुशावरत का एहतमाम किया जाए और रिपोर्ट तैयार की जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वाइस चांसलर्स को किसी के असर रसूख से ओहदे नहीं दिए गए। वाइस चांसलर्स का इंतखाब मेरिट और समाजी मसावत की बुनियाद पर किया गया है। अच्छा काम करें और हुकूमत का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि अगर मामलात गलत हो जाते हैं तो आपको हैरान कुन फैसले करने पड़ेंगे। वाइस चांसलर्स अच्छा काम करने के लिए आज़ाद हैं। हुकूमती ताउन हासिल रहेगा। यूनिवर्सिटियों को 100% शफाफ बनाया जाए। माजी में तलबा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को बरसों याद करते थे, अब ऐसा नहीं है। जामियात में मुनशियात और गांजे की फरोख्त पर नज़र रखी जाए, तलबा का मुशाहदा किया जाए और उनसे मुशावरत भी की जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसी भी बीजेपी ज़र इक़्तिदार रियासत के मुकाबले तेलंगाना का रिकॉर्ड बेहतर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तनकीदों के ट्वीट का जवाब देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि इक़्तिदार में आते ही 2 दिनों में ख़वातीन को मुफ्त बस के सफ़र की सहूलत फराहम की है। आरोग्यश्री स्कीम को 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। 1 साल मुकम्मल होने से पहले 22 लाख किसानों के कर्ज माफ़ किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ज़र इक़्तिदार वाली रियासतों में गैस की कीमत ज़्यादा है, जबकि तेलंगाना में 500 रुपये में गैस फराहम की जा रही है। 43 लाख अफराद इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमतें फराहम की गई हैं। तलबा के मेस चार्जेस में इजाफा किया गया है। मूसा नदी को दोबारा जिंदा करने का काम भी शुरू किया गया। फ्यूचर सिटी का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। स्किल यूनिवर्सिटी कायम की गई है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अवाम से किए गए हर वादे को पूरा कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मूसी प्रोजेक्ट पर बीआरएस पार्टी के मौक़िफ़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि क्या मूसा नदी प्रोजेक्ट का मंसूबा बीआरएस हुकूमत ने नहीं बनाया था। उन्होंने हुकूमत के ज़िम्मेदारों से मुलाकात करते हुए उस वक्त इस मंसूबे की मुखालिफत की थी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस बीमारी को पैदा करने वाली बीआरएस हुकूमत है और इसे अपना मुहासिबा करना चाहिए। बीआरएस हुकूमत ने मूसा नदी के लिए कुछ नहीं किया। सदर मजलिस ने सवाल किया कि आखिर बीआरएस के दौरे हुकूमत में गंडीपेट से पानी क्यों नहीं छोड़ा गया। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि बीआरएस का पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे पास मौजूद है। अगर हम जबान खोलेंगे तो बीआरएस कायदीन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम घरों को हाथ लगाए बगैर इस प्रोजेक्ट का खैर मकदम करें। सदर मजलिस ने मूसा नदी प्रोजेक्ट पर बीआरएस पार्टी के मौक़िफ़ को घड़ी में तोला और घड़ी में मासा के मुतरादिफ करार दिया। टीआरएस वालों को ज़रा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है उनको। ये जो प्लान बना मूसा नदी का नहीं बनाए थे तुम लोग, और मैं जाके बोला नहीं था मत बनाओ प्लान बोल के। ये अब खुल के बोलूँ पूरे बात मैं यहाँ पे। ये बीमारी को पैदा करने वाले तुम लोग ही हैं। गंडीपेट से पानी नहीं छोड़ रहे थे, कई को नहीं छोड़ रहे थे पानी गंडीपेट से मूसा नदी में। पूरी प्लानिंग आप लोग शुरू करें। आज भी हम बोल रहे, आप घरों को हाथ लगाए बगैर काम करना चाह रहे, मोस्ट वेलकम। ये टीआरएस वाले जो है ना, घड़ी में ताशा, क्या बोलते, घड़ी में माशा घड़ी में ताशा, कंसिस्टेंसी रखो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के नए सदर नशीन की तरफ से किसी भी गैर हिंदू को बोर्ड का रुकन न बनाए जाने के ऐलान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें इस बात पर एतराज़ है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत यह कहती है कि मुजव्वज़ा वक्फ तरमीमी बिल में यह कहा गया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 गैर मुस्लिम अरकान होने चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि वक्फ बिल में यह गुंजाइश आखिर क्यों रखी गई है, जबकि टीटीडी में सिर्फ हिंदू अरकान को शामिल करने का ऐलान किया गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को कैसे रुकन बनाया जा सकता है। सदर मजलिस ने कहा कि हमारे मजहब में आखिर क्यों नरेंद्र मोदी मदाखलत कर रहे हैं। ये दस्तूर के आर्टिकल 26 की खुली खिलाफ वर्जी है। नरेंद्र मोदी गैर मुस्लिम को क्यों वक्फ बोर्ड का रुकन बनाना चाहते हैं। कि जो टीटीडी के जो चेयरमैन बनाए गए हैं, उनको आंध्र प्रदेश की सरकार ने बनाया है और टीटीडी के बोर्ड के 24 मेंबर बनाए गए।
جس میں جناب بی آر نائیڈو صاحب جو چیئرمین ہیں، اس میں جو 24 ممبرز ہیں بورڈ کے، اس میں ایک بھی نان ہندو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ٹی ٹی ڈی کا جو بورڈ کا جو سیکشن ہے، سیکشن 96، اس میں یہ لکھا گیا ہے the persons 96 subsection 2 the persons appointed as members under subsection 1 shall be persons professing Hindu religion. تو جتنے 24 ممبر بنائے گئے ہیں ٹی ٹی ڈی کے، وہ پورے کے پورے ہندوز ہیں، نان ہندو نہیں ہے، نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ 96 سیکشن 96 کو دیکھیں گے آف پارٹ 14 آف آندھرا پردیش چیریٹیبل ہندو ریلیجیس ایکٹ 1987، تو وہ پرسکرائب کرتا ہے کنڈیشنز کو، اور وہ سیکشنز آپ بولیں گے کہ پورے کے پورے ہندو دھرم کے ماننے والے رہنا. پھر آپ آ جائیے سیکشن 106 ایگزیکٹو آفیسرز، جوائنٹ ایگزیکٹو آفیسرز تروملا دیوستھانم کے، سب سیکشن 2 یہ بولتا ہے کہ پورے کے پورے ہندو ریلیجن پروفیس کرنا. پھر سیکشن 97 دیکھ لیجئے اور پھر جو نئے چیئرمین بنائے گئے وہ یہ بول رہے ہیں کہ جو کوئی بھی وہاں پر کام کرے گا، یہ تو ٹرسٹیز ہو گئے، جو کوئی بھی وہ کام کرے گا وہ ہندو ہونا چاہیے. ہمارا بولنا یہ ہے کہ یہ ہندو دھرم کے لحاظ سے وہاں کے چیئرمین صاحب کر رہے ہیں، تو چیئرمین صاحب کو یہ اختیار ہے، ہم کو اس سے اختلاف نہیں ہے. ہم کو اس بات کی آپتی ہے کہ نریندر مودی کی سرکار، جس میں یہ تمام الائز بھی شامل ہیں، وہ جو وقف بل کے پروپوز بل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ وقف بورڈ ہے اور سینٹرل وقف کونسل ہے، اس میں یہ بول رہے ہیں کہ وہاں پر اسٹیٹ وقف بورڈ میں پورے مسلمان بننا چاہیے، اس کو پروپوز بل میں کم کر دیا جا رہا ہے. سینٹرل وقف کونسل میں 7 صرف مسلمان بنیں گے اور 2 تو مینڈیٹری کر دیا گیا ہے نان مسلم کو بنانا، مگر اس میں 12 بن سکتے ہیں نان مسلم. بھائی جب آپ یہاں پر نان مسلم کو اسٹیٹ وقف بورڈ میں اور سینٹرل وقف کونسل میں آپ بنانے جا رہے ہیں تو یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بھائی جب ٹی ٹی ڈی کے بورڈ میں یہ صاف لکھا گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف دا بورڈ آف ٹرسٹیز 96 دیکھ لیجیے آپ، 96(2) یہ کہتا ہے کہ صرف وہی ممبر بنے گا جو ہندو دھرم کے ہوتے ہیں. آپ یہاں پر وقف بل میں آپ یہ کیوں پروویژن لا رہے ہیں؟ بھائی ٹی ٹی ڈی بھی ہندو دھرم کا ایک بورڈ ہے، آندھرا پردیش ہندو انڈومنٹ چیریٹیبل پرپس کا بورڈ بھی ہندو دھرم کے لیے ہے، وقف بورڈ بھی جو ہے وہ مسلم دھرم کے لیے ہے. اب جب وقف بورڈ کی بات آ رہی ہے تو آپ اس میں بول رہے ہیں کہ نہیں مسلمان نہیں نان مسلم بنیں گے، اور سینٹرل وقف کونسل میں آپ بول رہے ہیں کہ نہیں منیمم 2 نان مسلم بنیں گے، اور اس میں کم سے کم جو ہے آپ بول رہے ہیں کہ 2 سے بڑھا کر آپ 12 بنا دیں گے. یعنی سینٹرل وقف کونسل میں نان مسلم میجورٹی ہو جائیں گے، اسٹیٹ وقف بورڈ میں آپ نان مسلم کو بنائیں گے. تو یہ پیرٹی ہونا چاہیے نا بھائی. جب ٹی ٹی ڈی ایک بہت بڑا ہندو دھرم کا ایک وہ مرکز ہے، وہاں پر آپ کے ٹرسٹیز کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، نان ہندو نہیں ہو سکتا ہے، وقف بورڈ میں کیسا نان مسلم ممبر بنے گا؟ بیرسٹر اویسی نے بڈگام انکاؤنٹر سے متعلق ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ریمارک پر کہا کہ ریاست میں امن و قانون کی ذمہ داری ایل جی کی ہوتی ہے. اگر جموں کشمیر میں دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں تو اس کے لیے بی جے پی کو ذمہ داری لینی چاہیے. اگر پاکستان سے دہشت گرد آ رہے ہیں تو انہیں کیوں نہیں روکا جا رہا ہے؟ اور مودی حکومت آخر کیا کر رہی ہے؟ دہشت گردوں کو روکنا مودی حکومت کا کام ہے. لیفٹیننٹ گورنر کے پاس لا اینڈ آرڈر ہے، اور اگر وہاں پہ آتنکوادی حملے ہو رہے ہیں بالکل صحیح ہے، اس کی ذمہ داری بی جے پی پہ عائد ہوتی. پاکستان سے آتنکوادی آ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ ان کو روک رہے کیوں نہیں؟ آپ اتر پردیش کے 2 غریب لیبروں کو جا کے گولیاں مار دی ان کے اوپر، وہ بیچارے اتر پردیش سے نکل کے وہاں پہ لیبر کا کام کرنے آئے، گولی مار دی ان لوگوں کو. کیا کر رہے ہیں مودی سرکار؟ پھر یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، ایل جی کی ذمہ داری ہے.
पाकिस्तान से टेररिस्ट कैसे हमारे देश में आ रहे हैं। आपको रोकना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, और हमारे देश के अंदर आकर वो गरीब लेबरर्स जो बिहार और यूपी के, उनको गोली मार, उनके कैंप में जाकर गोली मार रहे हैं। तो ये तो नाकामी है नरेंद्र मोदी सरकार की। आतंकवादियों को रोक नहीं पा रहे हैं वो, जो पाकिस्तान से आकर हमारे देश में हमारे शहरियों को मार रहे हैं। सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मुल्क भर में जात पात की मर्दमशुमारी होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आबादी के तनासब से आमदनी की तकसीम होनी चाहिए। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि 5 नवंबर को बोयनपल्ली में जात पात की मर्दमशुमारी से मुताल्लिक राय मशवरे के हसूल के मकसद से प्रोग्राम में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत जो मर्दमशुमारी कर रही है, इस पर तमाम अजला में इजलास मुनक्किद कर रही है। उन्होंने कहा कि पीसीसी की ख्वाहिश है कि कांग्रेस का हर कारकुन खानदानी सर्वे में शरीक हो। उन्होंने कहा कि अवाम का फायदा करना ही हमारा मकसद है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि रेवंत रेड्डी की सदारत में हुकूमत अच्छी तरह चल रही है। बीजेपी के महेश्वर रेड्डी को बीजेपी में मुकाम नहीं मिल रहा है, इसकी तकलीफ उनको है। उन्हें इस बात की तकलीफ है कि पीसीसी की तरफ से तमाम पार्टियों का कुल जमाती इजलास तलब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी किस्म की रुकावट के बगैर खानदानी सर्वे होना चाहिए। केसीआर बीसी तबके से संजीदा होते तो वो जामे सर्वे रिपोर्ट को मंजर आम पर लाते। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि 6 जनवरी को जिला वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता माह 29 तारीख को वोटर लिस्ट के मुसवदे का ऐलान किया गया था। तेलंगाना में 3,34,26,323 वोटर्स हैं। 8 लाख नए वोटर्स का नाम इंदराज किया गया है। उन्होंने कहा कि 4,14,000 वोटर्स के नामों को हज़फ किया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 551 पोलिंग मराकज़ हैं। तेलंगाना में 35,907 पोलिंग स्टेशन हैं। वोटर लिस्ट पर एतराज़ात 28 नवंबर तक लिए जाएंगे। 6 जनवरी को जिला फहरिस्त जारी की जाएगी। नवंबर की 9 और 10 तारीख को वोटर लिस्ट में नाम इंदराज करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि ग्रेजुएट काउंसिल के इंतखाबात में एसजीटी को वोट डालने का हक नहीं होगा। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन असेंबली श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि कानून बनाए बगैर रियासत में सर्वे किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने जात पात की मर्दमशुमारी के लिए खुसूसी कमीशन कायम करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में गैर यकीनी सूरत हाल है, इसमें ताखीर होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो गलतियां हुई हैं वही गलतियां यहां पर दोहराई जा रही हैं। बीसी कमीशन के जिले दौरे को जिले कलेक्टर्स तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीसी कमीशन की तौहीन करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ की कार्रवाई की जानी चाहिए। तेलंगाना बीजेपी के रियासती नायब सदर लक्ष्मी नारायण ने कहा कि 500 रुपए बोनस देकर धान खरीदने का वादा किया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक खरीदी मराकज नहीं खोले गए। मिलर्स ने बैंक गारंटी के साथ खरीदी करने का ऐलान किया था। यह अमल शुरू होने तक 1 महीना लग जाएगा। हुकूमत मसले को हल करने के बजाय किसी और मसले को मंजर-ए-आम पर लाकर टाल मटोल से काम ले रही है। उन्होंने कहा कि किसान मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी धान खरीदी जाए। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली हरीश बाबू ने कहा कि तेलंगाना में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट माफिया चला रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जंगली खिंजीर को हलाक करने पर असेंबली हलके में ओहदेदार किसानों पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल करने पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में महकमे जंगलात के वजीर से भी नुमाइंदगी की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेंगे और पीर तक ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो रेंज ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। इस मामले पर मरकजी व ममलकती वजीर से भी नुमाइंदगी की गई है। उन्होंने कहा कि महकमे जंगलात के ओहदेदारों के 3rd डिग्री को देखकर पुलिस भी 3rd डिग्री इस्तेमाल कर रही है। बीआरएस पार्टी का लीडर डी श्रवण ने कहा कि रियासत की 95% बीसी, एससी, एसटी और अक़लियतों को रेवंत रेड्डी धोखा दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीसी कमीशन के सदरनशीन का कहना है कि उनको अदालत के अहकामात नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि बीसी कमीशन भी रेवंत रेड्डी के इशारे पर काम कर रही है। कांग्रेस के बीसी अरकान आला गौर करें, मुस्तकबिल में मखसूस कमीशन कायम करें। उन्होंने मुतालबा किया कि फ़ौरन कुल जमाती इजलास तलब करें और साइंटिफिक तौर पर सर्वे कायम करें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस मामले में मदाखलत करते हुए बीसी के साथ इंसाफ करें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में अवाम के बुनियादी मसाइल की यकसुई के साथ साथ बेहतर तिब्बी खिदमात की फराहमी के लिए भी रुकन असम्बली अहमद बलाला सरगर्म हैं। इसी सिलसिले में रुकन असम्बली ने मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में मुकामी सुपरिटेंडेंट और डॉक्टर्स के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया।
रुकन असम्बली ने डॉक्टर्स के ताखीर से आने की शिकायत का नोट लेते हुए बायोमेट्रिक के लुजूम के सिलसिले में करारदाद मंजूर की। इस बात की भी ताकीद की गई है कि जजगी के लिए खवातीन को जजगी खाने को रुजू न किया जाए, एरिया हॉस्पिटल में ही इलाज को यकीनी बनाएं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हॉस्पिटल में अमले के तकर्रुर के सिलसिले में भी मुतल्लिका वजीर को मकतूब लिखा है। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के क़याम के सिलसिले में भी तबादला ख्याल किया गया। कोविड के वार्ड्स और ऑक्सीजन प्लांट के सिलसिले में भी ज़रूरी हिदायत दी गई। हॉस्पिटल में सफाई और दीगर उमूर के बारे में भी मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी गई। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर चिंतल बस्ती के फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के मसाइल की यकसुई की। उन्होंने बताया कि छोटे ताजिर चंद दिन पहले दारुस्सलाम आकर सदर मजलिस को अपने मसाइल से वाकिफ करवाया था। उन्होंने बताया कि मजलिस छोटे कारोबार करने वालों के मसाइल की हमेशा यकसुई करती है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में चिंतल बस्ती का दौरा करके मसाइल की समाअत की। उन्होंने बताया कि एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक और डीसीपी ट्रैफिक से इस सिलसिले में बात की गई, जिस पर पुलिस अहदेदारों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि छोटे ताजिर अपने हुदूद में रहकर कारोबार करेंगे ताकि इससे ट्रैफिक मसाइल पैदा न हो। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर ईदगाह मीर आलम का दौरा करके सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से मुनक्किद होने वाले इज्तिमा के कामों का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 9 और 10 नवंबर को 2 रोज़ा इज्तिमा सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने सरकारी महकमे जात के अहदेदारों के हमराह दौरा किया। उन्होंने बताया कि ज़ायद अज़ 1 हफ्ते से मुख्तलिफ काम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नए बैतुल खला और वज़ूखाने बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नलों और दूसरे काम 7 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएंगे। इस मौके पर तंजीम के ज़िम्मेदार हसन फारूकी के अलावा मुकामी अराकीन बलदिया मोहम्मद खादर और मोहम्मद सलीम के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन मौजूद थे। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने पुराना पुल के इलाके में सीसी रोड के कामों का मुआयना किया और गुत्तेदारों को काम में तेजी पैदा करने की हिदायत दी। हल्का असम्बली चार मीनार में सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर अवैसी की सरपरस्ती में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम किए जा रहे हैं। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर मंजूर किए गए 53 मुस्तहक दरख्वास्त गुजारों में रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 22,98,000 रुपये बताई गई है। इस्तेफादा कुनिंदगार ने कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। महाराष्ट्र के मुंबई में मुनक्किदा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स मुकाबलों में सनशाइन MMA और HFC फाइटर्स ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 4 गोल्ड मेडल और 4 सिल्वर मेडल हासिल किए। इनामी याफ्तागान ने कोच मुबश्शिरुद्दीन के हमराह दारुस्सलाम में रुकन असम्बली अहमद बलाला से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निम्स हॉस्पिटल में ज़र इलाज शख्स की अयादत करके उनके इलाज में बरती जाने वाली मुबैना लापरवाही का जायजा लिया। इस सिलसिले में रुकन कौंसल ने हादसे का शिकार मोहम्मद आरिफ के अफराद खाना से भी मुलाकात करके उनके मसाइल की समाअत की। उन्होंने बताया कि दवाखाने के सुपरिटेंडेंट और डायरेक्टर के अलावा RMO से भी मुलाकात की गई और मोहम्मद आसिफ का बहुत जल्द बेहतर इलाज करने की हिदायत दी गई। वाज़ेह है कि रियासत उत्तर प्रदेश के मुतवत्तिन मोहम्मद आसिफ का दवाखाने में ऑपरेशन के बाद उन्हें इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल किया गया था। मलकपेट एरिया हॉस्पिटल के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर M करुणाकर राव हफ्ते को वजीफे पर सुबकदोश हो गए। इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने भी शिरकत की। उन्होंने करुणाकर राव की खिदमात की सताइश की। करुणाकर राव ने भी कहा कि रुकन असम्बली अहमद बलाला की जस्तुजू से मलकपेट एरिया हॉस्पिटल ने कॉरपोरेट हॉस्पिटल के तर्ज पर तरक्की की है। उन्होंने रुकन असम्बली के मुसलसल ताउन पर भी इजहार तशक्कुर किया। शादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में आजमपुरा की गुंजान आबादी वाले इलाके में एक मुकामी शख्स ने मोर को देखकर उसे पकड़ा और फिर शादरघाट पुलिस स्टेशन के हवाले किया। ये वाज़ेह नहीं हो पाया कि गुंजान बस्ती के इलाके में मोर कहां से आया। पुलिस ने बताया कि इसे महकमे जंगलात के हवाले किया जाएगा।
गुड्डे मलकापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में टू व्हीलर टिप्पर लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में टोली चौकी साला जंग कॉलोनी का साकिन 23 साला रहीम खान और 19 साला मुस्तफ़ा जख्मी हो गए। दोनों एक ही बाइक पर जा रहे थे। फौरी दोनों जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बाबानगर की रहने वाली एक खातून सैयदा यास्मीन को मकान के मालिक का बेटा और उसके साथियों ने मुबैना तौर पर मारपीट करके शदीद जख्मी कर दिया। मुतासिरा खातून ने बताया कि कंचनबाग पुलिस में शिकायत की गई। कई दफ़ा इन पर इसी तरह का हमला इससे कबल भी किया गया है। पुलिस से शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, मुतासिरा खातून घर में अकेली थीं। खातून ने अरबाब मजाज से अपील की है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। उन्होंने बताया कि उनके पास से अशरार ने दस्तावेजात और सेल फोन भी लेकर फरार हो गए हैं। मेरे पे घर पे पहले बेटा आया, लाइट वाला आया, नीचे उतरा, लाइट के वायरिंग का कट कर दिया। वो मकानदार यूसुफ का, उसका भाई है, भाई का तो नाम नहीं मालूम, उसका नंबर है। और जैसे ये बच्ची पे हमला, मेरे पे घर में दरवाजा तोड़ के आके घर में से मेरे हाथा पैरा पकड़ के आदमी लेके आके लटों से मारे। 6 आदमी थे, मजदूरा भी थे उसमें। मजदूरा इतने बड़े लटों से मार रही, मैं रहम कर रहा हूँ, छोड़ो मेरे को, अल्लाह का वास्ता दे दे, मगर मेरे को नहीं छोड़े लगा। लास्ट में भागा तो एक जने बोल रहा लाइट वाला तेरी इज्जत खराब कर दे, तो बोला मेरे हाथा पकड़ के अंदर लेके जा रहा मेरे घर में। घर में घुस के मारे मेरे को, बहुत मारे। कंचनबाग पीएस में कहते थे, वहाँ पर भी 2 वक्त एक्शन नहीं है। तीसरी वक्त में अब हमला करे बस से वो लगाए। पुलिस वालों के ऊपर भूत तो भरा, पुलिस वाले मेरे हाथ के जेब के बोला। पुलिस वालों को कंप्लेन करे तो पैसे दे के लोग का मुँह बंद करा देना। कंचनबाग पीएस में कोई एक्शन नहीं। तेलंगाना के सूर्यापेट में आरटीसी बस खानगी मुसाफिर बस से टकरा गई। बताया गया है कि कोडाड़ के पास खानगी बस ने खड़ी हुई थी, आरटीसी बस इसे पीछे से टक्कर दे दी। इस हादसे में तकरीबन 30 लोग जख्मी हुए हैं। 4 की हालत नाजुक बताई गई है। जख्मियों को करीबी दवाखाना पहुंचाया गया है। यह हादसा हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली बस के साथ पेश आया है। संतोषनगर इलाके में जुमा की रात मंदिर में आग लगने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक वेंकटेश्वरा टेम्पल में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकामे वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। वैसे भी दीपावली के मौके पर कई मुकामात पर आग लगने के वाकयात पेश आ चुके हैं। चरलापल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े वेंकट रेड्डी नगर में अचानक पार्क की हुई कार में आग लग जाने से 2 कमसीन लड़कियां झुलस गईं। मुतासरा लड़कियों की शनाख्त 4 साल की जोशीता और 6 साल की महेश्वरी की हैसियत से की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकामे वाक़या पहुंची और जख्मी लड़कियों को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। त्यौहार के दिन आग लगने की वजह से अफराद ख़ानदान को सख्ते में देखा गया है। शहर में यादव बरादरी की जानिब से हफ्ते को सदर त्यौहार मुनक्किद होगा। इस त्यौहार में मुख्तलिफ रियासतों के खुलगे दौड़ में हिस्सा लेंगे। हरियाणा का गौलो सबकी तवज्जो का मरकज रहेगा। इससे पहले भी गौलो चैंपियनशिप जीत चुका है। इसका वजन 2 टन और कद 7 फुट बताया गया है। हर साल दीपावली के दूसरे दिन यादव बरादरी की तरफ से यह त्यौहार मुनक्किद किया जाता है। इंदिरा पार्क के धरना चौक के पास होमगार्ड की बीवियों ने एहतजाज किया। एहतजाजी ख़वातीन का कहना था कि उनके शौहरों की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, उनकी मुलाजिमत को मुस्तकिल किया जाए। बाद में पुलिस ने एहतजाजी ख़वातीन को हिरासत में ले लिया। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल
Dollar Hills, Alkapur Road, Musa Enclave, SA Colony, Toli Chowki, MSN, Diamond Hills Colony, Toli Chowki, Azal Residency, SA Colony, Toli Chowki, Serene Heights, Golden Sand Colony, Toli Chowki, Darul Aman, Happy Homes Colony, Alkapur, Darul Khair, Suryanagar Colony, Toli Chowki, Delight Suit, beside Sana Enclave, Toli Chowki, Akbar Enclave, Golden Sand Colony, Toli Chowki. Uncompromised quality constructions, on time delivery हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। वाइस चांसलर अच्छा काम करने के लिए आजाद। मेरिट की बुनियाद पर तकर्रुर किया गया है। यूनिवर्सिटी में जामे इस्लाहात लाने की जरूरत है। वजीर आला से नए वाइस चांसलर्स की मुलाकात। मूसा नदी प्रोजेक्ट पर बीआरएस का मौक़िफ़ घड़ी में तोला, घड़ी में मासा के मुतरादिफ। बीमारी को पैदा करने वाली बीआरएस पार्टी। हमारे मजहब में आखिर क्यों नरेंद्र मोदी हुकूमत में दाखिलत कर रही है? सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पांच नवंबर को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा। जात पात की मर्दमशुमारी के इजलास में शिरकत। तमाम पार्टियों के साथ कुल जमाती इजलास। महेश कुमार गौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और संतोष नगर में मंदिर में लगी आग, इलाके में सनसनी। चरलापल्ली में कार में आग लग जाने से कमसिन लड़कियां झुलस गईं। और नाज़रीन के साथ खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज।